Okay, let's start exercise 1.1. So students, in your fair copy, write down exercise 1.1 chapter number 1 and start question number 1. Question number 1 is use both tabular and set builder form to specify the following set. Number 1 or A is the set of positive integers greater than 2 and less than 6. This is the descriptive method. ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है. नाउ सी, आपके पास क्या लिखा हुआ है, आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 आपने मेंशन किया, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, ए लिखा, सेट इज़ द पॉजिटिव अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीगर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6. ठीक है, टी एफ शोज़ टेबुलर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म में हमने क्या किया, इसको डिजिट से शो किया. पॉजिटिव इंटीगर्स ग्रेटर देन 2 is 3, 4, but less than 6 is 3, 4 and 5. So we write 3, 4, 5. ठीक है, all these members enclosed in a curly bracket. ठीक है, सेम आपके पास जो भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट था उसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, शोज बाय द सिंबल. सो हमने क्या लिखा, x such that x belongs to positive integers, z shows positive integers, and अब आपके पास x क्या चीज़ है, it is lesser than 2 and greater than 6. देखिए बेटा, ये जो साइन है आपके पास यहाँ पर, जहाँ पर ये साइन ओपन होगा इसका मतलब वो ग्रेटर साइड होगी, और जहाँ ये साइन क्लोज हो इसका मतलब क्या है, वो लेसर साइड होगी. इसका मतलब x से छोटा है, 2 इज़ लेसर देन x. ठीक है, and 6 is greater than x. So we can say that x such that x belongs to positive integers and x is greater than, ये greater की तरफ यानी इस तरफ ओपन है तो x greater है 2 से, x is greater than 2 and lesser than 6. and curly bracket close करेंगे because set, जब हमारे पास set complete हो जाएगा we close the curly bracket. Second is the positive integers less than 20 that are divisible by 5. So क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, less than 20 में only 3 elements which are divisible by 5. This is 5, 10 and 15. So in tabular form आप टेबल बनाएंगे, सेट बनाएंगे and write down 5, 10 and 15. and set builder form में हम क्या करेंगे, we write x such that x belongs to positive integers and x is lesser than 20 and divisible by 5. ठीक है, सी कैसे लिखे हमने, x such that x belongs to positive integers and x is lesser than 20 and divisible by 5. ठीक है, similarly a set of natural numbers between 4 and 12. so natural number set में आपके पास क्या क्या आएंगे, between 4 and 12 is 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. so you may write it in tabular form 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. and in set builder form, ठीक है, सेट है नेचुरल नंबर का, सो वी कैन राइट इट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x is greater than 4 and lesser than 12. okay, then D is a set of first 6 positive prime numbers. so first 6 positive prime numbers क्या हैं आपके पास, ये आपके पास हैं first 6 prime numbers हैं आपके पास. Now see question number 2. Question number 2 is which of the following are the null set. okay, तो हमें ये बताना है कि इनमें से कि ऐसे कौन से सेट हैं जिनके ज़ीरो एलिमेंट हैं, जिनका कोई एलिमेंट नहीं बन सकता, वो नल सेट होंगे. ओके, लेट्स सी, आपके पास लिखा हुआ है x such that x is a letter before a in English alphabet. it means there is no letter before a in English alphabet. it means a is a null set. तो हम लिखेंगे a is a null set. ठीक है, now see b क्या लिखा हुआ है, x such that x plus 5 is equal to 5. now चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं. अगर आपके पास लिखा हुआ है x such that x
इज़ इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है कि x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 5, x इज़ इक्वल टू दिस प्लस 5 यहाँ शिफ्ट होगा तो आपके पास हो जाएगा 5 माइनस 5, एंड 5 माइनस 5 करेंगे तो x इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, आपके पास जो सेट है वो इट कंटेन एलिमेंट 0। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो सेट का एलिमेंट है वो क्या है, 0। इसका मतलब सेट कंटेन वन एलिमेंट, दिस इज़ अ सिंगलटन सेट, दिस इज़ नॉट नल सेट, सो वी कैन राइट इट, दिस इज़ B इज़ नॉट null set. Now see x such that x is less than 7 and greater than 8, तो कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो 7 से छोटा और 8 से बड़ा हो, इसका मतलब क्या है, दिस इज़ अ null set. x such that x is past president of Pakistan who was a woman, so there is no women became president of Pakistan, therefore D is also a null set. Let's see question number 3. Question number 3 में आपके पास क्या लिखा हुआ है कि you have to write finite or infinite against the set. Which of these sets are finite, which of these sets are infinite? So the month of a year can be countable, इसका मतलब this is finite set. A day in a year बिल्कुल countable है, finite set है. The student in your class, finite. This is the set of even number 2, 4, 6, 8, 10 and onwards, इसका मतलब क्या है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, this is infinite. A set of lines passing through a point, ठीक है, indefinite lines can be passed through a point, किसी भी पॉइंट के ऊपर से हम बहुत सारी लाइंस को पास कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, this is infinite set. The set of line passing through two given points, for example this is point 1 and point 2, अब हमारे पास एक ही लाइन पास हो रही है ना, इसका मतलब क्या है, द सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, इसका मतलब दिस इज़ अ फाइनाइट सेट. अच्छा ओके, अब क्या करें हम, अभी आफ्टर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, फिर इसके बाद बाकी के क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट, ठीक है. सो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि व्हाट आर द इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट आर दो सेट्स विच हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी उनके नेचर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सिमिलर नहीं होते, बट द नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ सिमिलर एंड दे आर 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस. तो अब हमने क्या किया, उन्होंने ए में हमें गिवन है ए बी सी, बी में आपके पास है 1, 2, 3. सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज़ 3, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज़ 3. इसका मतलब बोथ द एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. हमने इसकी 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस चेक करेंगे और बताएंगे कि ये आपके पास इक्विवेलेंट है या नहीं. इसका मतलब ए जो है वो इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है. सिमिलरली बी और सी को भी आप सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में और शो करेंगे कि इफ़ दे आर 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस देन दे आर इक्विवेलेंट, और अगर ये इक्विवेलेंट नहीं होंगे तो यू मे राइट कि द सेट ए इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू सेट बी. ओके, नाउ व्हाट आर द सबसेट्स. देखिए सबसेट का नाम से ही हमारे पास क्लियर है कि पार्ट ऑफ एनी सेट. ओके, तो इफ़ elements of any one set is present in the second set, then it is called the subset of the other. Okay, if all the elements of B, set B, is also the element of set A, then B is the subset of A. और हमने इसको कैसे शो किया, हमने शो किया कि A जो है containing elements 1, 2, 3, 4, 5, B containing elements 1, 2, 3. So all the elements of B is present in A. Therefore B is the subset of A. ठीक है, ये कुछ U का सा शेप होता है जिसको हमने क्या वन साइडेड डाउन किया हुआ है. तो जिस तरफ ये ओपन होगा इसका मतलब क्या होगा कि वो सुपर सेट होगा, और जिसकी तरफ ये क्लोज्ड होगा इसका मतलब वो सबसेट होगा. इट मीन्स B क्या है, इट इज़ द सबसेट ऑफ A. ओके, अच्छा, नाउ देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ सबसेट. कौन कौन सी टाइप्स हैं, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट.
proper subset is the subset when any element, see the example कि like B आपके पास है it containing 1 2 3 and A containing 1 2 3 4 5. So all the elements of B is present in A, but A having some overlapping elements. A के पास 4 भी है और 5 भी है. इसका मतलब B जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका? A का. और A जो है वो सुपर सेट है किसका? B का. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है फॉर एग्जांपल सेट A हैविंग 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. सेट B हैविंग 1 2 3. So all the elements of B is present in A, but A having some overlapping elements like 4 5 6 7. इसका मतलब B is the proper subset of A. Another example, C having elements 4 5 6. So 4 5 6 ये रहे 4 5 6. इसका मतलब C के elements जो हैं they are present in set A, but A having some other elements also. इसका मतलब C is the proper subset of A. Now what is D? D is the set of 6 and 7. दो elements हैं इसके पास और यहाँ देखें A में भी नज़र आ रहे हैं आपके पास 6 और 7. It means D is the proper subset of A. Okay. Now C E. E containing 1 2 3 4 5 6 7. It means all the elements of E is present in A. इसका मतलब ये इसका सबसेट तो है, बट both the set having same elements, यानी जितने एलिमेंट आपके पास E में नज़र आ रहे हैं A 1 2 3 4 5 6 7, they are present in A having 1 2 3 4 5 6 7. So E is the improper subset of A, or otherwise A is the improper subset of A. In other words हम इसको लिख सकते हैं E is equal to A. ठीक है, यानी दो इम्प्रॉपर सबसेट एक दूसरे के इक्वल सेट्स भी हो सकते हैं बिकॉज दे हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच हैविंग सेम नंबर एंड सेम नेचर. सो जब आपके पास ये यू का जो आपके पास सिंबल है ये इस लाइन के साथ आएगा, इसका मतलब क्या है कि ये बोथ द सेट्स जो हैं ये आपके पास क्या हैं, ये इम्प्रॉपर सबसेट हैं एक दूसरे के. इन दोनों के एलिमेंट्स बराबर हैं एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर. The last part of the exercise is to find the power set. Okay, what is the power set? Power, a set of all possible subsets including proper, improper both, is called power set. Let's suppose that you have a set A 1 2 3. Okay, power set is denoted by capital P. Okay, now how can we find out the total number of subsets? So it is by 2 power n, where n is total number of elements of set A. As A has 3 elements, so 2 has power 3. 2 cube means 8 subset. So it has 7 proper and 1 improper subset. How can we write it? Power set is written as it is a set, it is written in braces, curly bracket. So the first subset is null set 1 2 3 1 2 1 3 2 3 and 1 2 3. ठीक है, काउंट करेंगे अगर हम इसे तो 1 2 3 4 5 6 7 प्रॉपर सबसेट है और एक इम्प्रॉपर सबसेट है. एक्चुअली सारे सबसेट्स को अगर हम क्या करें कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है पावर सेट. ओके, मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज एस क्या है? एस इज़ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीगर्स और हमें बनाने हैं प्रॉपर सबसेट एस के दैट आर ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए. और ए क्या चीज़ है? ए इज़ द सेट ऑफ इंटीगर्स लेस देन 3. इसका मतलब ए जो है दिस इज़ द सेट हैविंग मेंबर्स 1 2. ओके, वाइल एस जो होगा पॉजिटिव इंटीगर्स है 1 से स्टार्ट होगा, इनफाइनाइट सेट है.
अब अगर आपके पास ए जो है इसके 2 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 4 होंगे। और वो क्या क्या होंगे? नल सेट 1 2 एंड 1 2। ठीक है, इसका मतलब कि हम इस क्वेश्चन में 4 सबसेट्स बनाएंगे। ये चारों सबसेट्स जो हैं ये ए के तो सबसेट हैं, बट दे आर ऑल्सो द प्रॉपर सबसेट ऑफ एस। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ ए आपके पास क्या है? ए आपके पास सेट है ए बी सी डी। ओके, तो ए बी सी डी में हम क्या करेंगे? हमें पहले में क्या करना है? हमें प्रॉपर सबसेट बनाने हैं ए के एज द मेंबर 4। ठीक है, अगर हम 2 को क्या करेंगे? पावर 4 देंगे, इसका मतलब 16 सबसेट बनेंगे, जिसमें से 15 प्रॉपर होंगे और 1 जो है वो इम्प्रॉपर होगा। तो टेक द गाइडेंस फ्रॉम द एग्जाम्पल और द वीडियो and make 15 proper subset of A and 1 improper subset of B। अच्छा जी, अब देखें, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पार्ट सी देखें। 2 sets B and C that are subset of A such that B is the proper subset of C। ठीक है, अच्छा चलें इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक, अब आपके पास क्या था? आपके पास ए था, ए बी सी डी। ठीक है, अब हमने क्या किया? हमें 2 सेट और बनाने। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बनाया बी इज़ ए बी और सी इज़ इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, नाउ बी जो है वो आपके पास क्या है? इट इज़ ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए, सी इज़ ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए, बट दिस इज़ द सिचुएशन इन विच बी is the proper subset of C because all the members of B is present in C and C is overlapping set, it having an extra member। इसका मतलब क्या है कि आपने ऐसे 2 सबसेट बनाए जिसमें आपके पास B जो है वो C का प्रॉपर सबसेट है and they both are the subset of A। ठीक है, now moving part D। 2 sets B and C such that they are the subset of A and such that B is the improper subset of C। अब क्या करना है? आपको 2 ऐसे सबसेट बनाने B और C जो A के तो सबसेट हों, मगर क्या हो कि वो दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट हों। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इस कंडीशन में हम इफ़ वी हैव A इज़ इक्वल टू ए बी सी डी, so we make B and C similar, like we can make it ABC and ABC। ठीक है, बिकॉज पहले भी मैंने आपको बताया कि इम्प्रॉपर सबसेट हैविंग सेम नंबर एंड सेम नेचर एलिमेंट, यानी ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल सेट भी हो सकते हैं। अब बी और सी जो हैं वो दोनों क्या हैं? एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट हैं और बी जो है वो सी के इक्वल है और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ए के सबसेट हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6। नाउ 6 में आपके पास क्या है? 6 में आपके पास फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ ए और हेंस फाइंड द पावर सेट ऑफ ए। तो सिमिलरली आप क्या करेंगे? आपके पास ए बी सी डी जो आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं ए के, हम क्या करेंगे? हम इसके प्रॉपर और इम्प्रॉपर सारे सबसेट को कंबाइन करके क्या करेंगे? कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे और वो क्या बन जाएगा? वो आपके पास बन जाएगा पावर सेट। ठीक है, तो लाइकवाइज ऑल द क्वेश्चन आर वेरी सिंपल। सो 7 8 9 10 and 11। ठीक है, read the question, do the exercise, complete this exercise in your fair copy। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे? हम मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में towards 1.2। थैंक यू स्टूडेंट्स।